الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے آپ تمام طلباء اور اساتذہ کو اور پورے ہندوستان کے باشندوں کو تہہ دل سے اس یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کی جو تقریب آپ کے سامنے منعقد کی گئی ہے، یہ سبھا ہندوستان کی تاریخ میں وہ تاریخ ہے جسے ہم اور آپ یوم آزادی کے نام سے جانتے ہیں۔ آج میں نے اپنے اس چھوٹے سے مختصر سے خطاب کے لیے آزادی کے اوپر جو عنوان منتخب کیا ہے وہ ہے جنگ آزادی میں صوفیاء و مشائخ اور علماء کا کردار۔ ویسے تو یہ ایک اتنا بڑا طویل موضوع ہے کہ اگر ہم اس پر کئی دن خطاب کریں پھر بھی اس کے سارے گوشوں کو بیان نہیں کر سکتے۔ بس آپ کے سامنے اس 30 منٹ میں مختصر سا تاریخی جائزہ پیش کریں گے تاکہ سب ہمارے علماء، صوفیاء اور مشائخ کے جنگ آزادی کے کردار کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ میں اپنے خطاب کی ابتدا ان دو شعر سے کر رہا ہوں کہ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے، نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے، نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے، نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے، اور جو دریا مل گئے اس میں وہ دکھلائے نہیں دیتے، جو دریا مل گئے اس میں وہ دکھلائی نہیں دیتے، اس مہا ساگر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے، مہا ساگر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے۔ حاضرین، جنگ آزادی کی تاریخ یہ سینکڑوں سال پہ مشتمل ہے اور اس کی بڑی ہی طویل داستان۔ آج کے دن جو ہم یوم آزادی منانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، یہ ہماری صرف تاریخ نہیں بلکہ ایک یادگار ہے کہ آج ہی کے دن ہندوستان کی سرزمین انگریزوں کے تسلط اور اس کے اقتدار سے آزاد ہوئی تھی اور ہم سب آزادی کی فضا میں سانس لینے کے لائق تھے۔ لیکن اس آزادی کی منزل تک پہنچنے میں کتنی قربانیاں پیش کی گئی، کتنی جانوں کے نذرانے پیش کیے گئے، کتنی ماؤں نے اپنے گود اجاڑے، کتنی عورتوں نے اپنے سہاگ اجاڑے، اس کی بڑی ہی دردناک اور طویل داستان ہے۔ اس میں سب کا کردار ہے، جو برادران وطن ہیں ان کا بھی اہم کردار ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ انفرادی طور سے کسی خاص مذہب کے ماننے والوں نے جنگ آزادی میں کردار ادا کیا، بلکہ ہندوستان کی سرزمین پر پیدا ہونے والے، رہنے والے اور اس سرزمین سے محبت کرنے والے جس مذہب، جس فرقے اور جس رنگ کے لوگ تھے، سبوں نے اس جنگ آزادی میں بھرپور حصہ لیا۔ مگر جو سب سے نمایاں کردار رہا ہے اس جنگ آزادی میں وہ مسلمانوں کا رہا ہے، جو لیڈ رول کی حیثیت سے تاریخ کے صفحوں پہ رقم ہے، ہسٹوریکل کتابوں میں درج ہے، وہ مسلمانوں کے کارنامے ہیں۔ اس وقت جب کوئی آزادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، تب مسلمان علماء اپنے کمروں میں بیٹھ کر ہندوستان کی آزادی کے اوپر اور انگریزوں سے قبضہ ہٹانے کے لیے غور و فکر کر رہے تھے، ذہن سازی کر رہے تھے۔ اس وقت جب کوئی تحریک وجود میں نہیں آئی تھی، کوئی مومنٹ پیدا نہیں ہوا تھا، اس وقت ہندوستان کے مشائخ اور بزرگان دین اپنی خانقاہوں اور درگاہوں میں بیٹھ کر
हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए अपने मुरीदों की सेहतसाजी फरमाने। एक नवाब सिराजुद्दौला के नाना अली वर्दी खान ने 1754 ईस्वी में लड़ी और उसे शिकस्त दी। उस वक्त कलकत्ता का डायमंड हार्बर और फोर्ट विलियम अंग्रेजों का मरकज था, उसकी पनाहगाह थी। जब कलकत्ता से खदेड़े गए तो वो जाकर के फोर्ट विलियम में पनाह हुई। 1757 में एक बड़ा सूरमा जो हिंदुस्तान की तारीख आजादी में बहुत ही मशहूर है, उन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के लिए ऐसी कोशिश की कि उस वक्त ऐसा महसूस हुआ कि अंग्रेज करीब है कि छोड़ करके हिंदुस्तान भाग जाएंगे और ये हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा। उस सूरमा का नाम, उस बदले जलील का नाम तारीख के सुनहरे रूप में शहीद शेर मैसूर सुल्तान टिपू। इन्होंने 1783 में अंग्रेजों को बड़ी शिकस्त दी थी। फिर कई जंगें हुई, करीब था कि अंग्रेज हताश और निराश होकर के हिंदुस्तान छोड़ जाते, लेकिन इनके जो फौज में गुजरा थे उनकी गद्दारी की वजह से आप मकामे सरंगापट्टनम में 1799 ईस्वी को लड़ते लड़ते शहीद हो गए। और उन्हीं का ये मकूला आज दुनिया भर में मशहूर है कि गीदड़ की 100 साल की जिंदगी शेर की, गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर शेर की एक जिंदगी, एक दिन की जिंदगी होती है। ये शेर जो हिंदुस्तान की तारीख आजादी में बड़ा नुमाया किरदार अदा किया, वो ऐसा पन्हा जाबाज था जिसने अंग्रेजों को हिला कर रखा। सुल्तान टिपू, इनकी शहादत के बाद मुल्क में ऐसी नौबत आ गई कि अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट और ईस्ट इंडिया कंपनी के तवस्सुस से जो असरात कायम हो रहे थे उसका दायरा बढ़ने लगा। अब बरतानवी हुकूमत ने अपना दायरा इख्तियार बढ़ाना शुरू कर दिया। करीब था कि पूरे हिंदुस्तान पर वो हुकूमत करने लगते, उस पर काबिज हो जाते। उस जमाने में बिल्कुल टिपू सुल्तान की शहादत के बाद जो हमारे अरबी मदारिस थे, दीनी मदारिस, उसको चुन चुन कर अंग्रेजों ने निशाना बनाया, क्योंकि उन्हें खौफ था कि हमारे खिलाफ जो बगावत कर सकते हैं, हमारे खिलाफ अगर कोई ताकत हमें चैलेंज कर सकती है तो वो यही मदारिस के जाबाज हैं, इसी मदारिस के पढ़े हुए तलबा, इसी मदारिस के उलमा हैं। उन्हें बड़ा खौफ था, इसलिए उसने चुन चुन कर दीनी मदारिस को निशाना बनाया, टारगेट बनाया, उसे तबाह किया। इसी दरमियान दिल्ली के अंदर एक तहरीक वजूद में आई जिनकी बुनियाद इमाम जलील, इमाम इल्म-ओ-फन, इमाम तरीक़त हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान ने रखी। तारीख आजादी में इनका भी हिस्सा है। ये अलग सी बात है कि इन्होंने दूसरे तरीके से हिस्सा लिया, लेकिन जो सबसे पहली तहरीक आजादी की दिल्ली के अंदर कायम हुई है उसके बानी शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह। 1762 में इनकी विलादत हुई और उसी तहरीक को आगे बढ़ाते हुए उनके साहिबजादे हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरोग और कमाल तक पहुंचाया। और शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी का वो नाम है जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दिया था और ये ऐलान किया था कि पूरा जो बरतानवी हुकूमत जो हिंदुस्तान के अंदर फैली हुई है ये दारुल हर्ब है, इनसे जिहाद करना इस्लामी फरीज़ा। खुले तौर से जिहाद का ऐलान करने वाले शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी है। गर्चे आजकल जो तारीख और हिस्ट्री की किताबें हैं उनमें से इनका नाम हज़फ कर दिया गया, ये बड़ी बेइंसाफी की बात है। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के बाद ये काफिला चलता रहा। अब इसके बाद जो एक बड़ा मार्का होता है जिसको हम तारीख में 1857 के नाम से याद करते हैं, गदर। गदर ये नाम दिया हुआ अंग्रेजों का है, दरअसल ये गदर नहीं है, ये तो अंग्रेज की बढ़ती हुई बर्बरियत और जो उसका जुल्म था हिंदुस्तानियों पर, उसके खिलाफ
आवाज़े बगावत बुलंद करने का नाम वो गदर रख दिया उसने। 1857 की तारीख ये बताती है कि 1857 में एक जमात तैयार हो गई बाकायदा अंग्रेजों के खिलाफ, जिसकी बुनियाद रखने वालों में ये चंद नाम थे जो उलमा थे, आप उनको सुनिए। उनमें सबसे पहले शरफ मुजाहिद आज़ादी हज़रत अल्लामा फजल हक खैराबादी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। और फजल हक खैराबादी कौन है आपको मालूम होना चाहिए। ये अवध की सरजमीन खैराबाद के रहने वाले थे, वही उनकी सुकूनत थी। ये हमारे लिए और भी एजाज और फख्र की बात है कि हमारे अवध की सरजमीन से वो पहला शख्स जिसने फतवा जिहाद जामा मस्जिद दिल्ली से जारी किया और उलमा को बैठा करके मीटिंग और इजलास करके ये पास किया कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करना फर्ज है, फर्ज है, फर्ज। दूसरा नाम आता है हजरत मौलाना रहमतुल्लाह कीरानी का। ये भी सूफिया की तरबियत याफ्ता और प्रवर्तक है। आप इनमें से जिन उलमा का नाम सुनेंगे वो सारे उलमा दरअसल किसी न किसी बुजुर्ग और किसी न किसी मुर्शिद तरीक़त की तरबियत में रह चुके हैं और किसी न किसी सिलसिले से वाबस्ता है। ये सारे उलमा वो गोया कि इस तरह से खानकाहे, दरगाहे और मशाइखाने तरीक़त ने भी ऐसे अफराद अपने यहाँ पैदा किए जिन्होंने भरपूर तौर से जंग आज़ादी में हिस्सा लिया। तीसरा नाम आता है मुफ्ती सदरुद्दीन आज़ुल्ला देहलवी, बड़ा नुमाया नाम है, जबरदस्त आलिम, फकीह और मुफ्ती गुजरे। और चौथा नाम आता है जो हमारे सिलसिले की शान भी है, सैयद हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, जो सिलसिले साबरिया चिश्तिया के एक बड़े जलील कद्र शेख है, मुर्शिद तरीक़त है। आपके पीर मुर्शिद का नाम हजरत नूर मोहम्मद झंझानवी है, जो सिलसिले साबरिया चिश्तिया के मुर्शिदों में आते हैं और उनके मशाइख में आते हैं। ये हमारे सिलसिले के लिए बड़े फख्र की बात है कि जंग आज़ादी में जिन लोगों ने अपना रोल प्ले किया और नुमाया किरदार अदा किया, उनमें हमारे मशाइख का भी नाम सर। और इनका एक वाक़या और बयान करूँ। 1857 में शामली में, मुजफ्फरनगर शामली में